Okay. So first member in this case is the methane. Now, when we talk about the alkene and alkynes, in that case, what is going to happen? कि if you want to have the single carbon atom का मतलब क्या हो गया? अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हो और आप एल्कीन को फॉर्म करना चाहते हो, सो लेट्स लुक C1H2 multiply by 1, so it will be C1H2, which is not possible. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है दैट कार्बन इज द टेट्रावेलेंट इन द नेचर. अब इसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है? इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आपका एक कार्बन है एंड इट इज हैविंग ओनली 2 हाइड्रोजन्स, which is wrong, or you can say which is not possible. Therefore, in the case of the alkenes and alkynes, the meth group is not possible, or you can say a single carbon atom is not possible. Its first member is the eth. Because it is alkene, so we use a suffix "ene", and in this case we use a suffix "ine". Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Now when we talk about the condensed structure का मतलब क्या हो गया? That we do not show any bond. आप कोई भी bond जो है वो show नहीं करते हो. मैं यहाँ पे मीथेन का ही बताती हूँ. I have not shown any bond over here. So this is going to called as the condensed structure for the methane. अगर इसको हम open chain structure बनाएंगे, so it will be what? It will be like this. Okay. Now let's look the few more examples for this. Say suppose हमारे पास है ब्यूटेन. ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया? You are having the 4 carbon atoms. So butane, how you are going to make it? CH3, CH2, CH2, CH3. This is your butane. अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. You can write like this also. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. These all patterns are correct. किसी बुक में हो सकता है कि हाइड्रोजन यहाँ लगा रखे हो, like this. Okay? किसी बुक में हो सकता है हाइड्रोजन्स आगे लगा रखे हो. किसी बुक में there is a possibility that they have shown this bonds. So do not get confused. All these forms are correct. Only the thing which is mattered over here is what? कि butane means that there are the 4 carbon atoms. Therefore, you should shown the 4 carbon atoms. Plus, each carbon should satisfy the valency of the 4. Now, when we make a open chain structure for the butane, तो 1 2 3 4 आप ये बना दो पहले. उसके बाद हर एक कार्बन के आपको 4 बॉन्ड्स बनाने हैं. एक ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो 1 2 3 और ये 4 हो गया. अब यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास 2 ऑलरेडी हैं, तो आपको 2 और बनाने हैं. Similarly over here, similarly this. Now what happens if we are leaving this dash? This also shows that there is the hydrogen only. And if you make, it will be more better. So now these 4 are what? These are the condensed structure of the butane, and this one is the your open chain structure for the butane. Is that clear? The difference between the condensed and the open chain structure? Yes, Everyone? ma'am. Sure. अब आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये H3 यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं.
आप कहीं पे भी लगाओ H3, इट इज करेक्ट। ओके, मैम कंडेंस्ड में इस ब्यूटेन वाले में ऐसे नहीं लिख सकते C4H10? आप वो भी लिख सकते हो बेटा, C4H10। एक्चुअली दिस इज ऑल्सो राइट, आप ये भी लिख सकते हो C4H10, बट you can write it C4H10. Any other question? What happens कि जब आप condense structure बोल रहे हो ना, तो moreover than the condense structure, it is considered as the molecular formula for the butane. Okay. Moreover, it is considered as the molecular formula of the butane. So you can write it, but it will be considered more as the molecular formula. Now, coming to your ethene. इथीन में मैंने आपको क्या, सॉरी, एल्कीन, एल्कीन में व्हाट आई टोल्ड, योर फर्स्ट मेंबर इज हैविंग द 2 कार्बन एटम्स, सो इट मींस फर्स्ट यू मेक द 2 कार्बन एटम्स। अब एल्कीन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड ओवर हियर। नाउ हर एक कार्बन, 2 कार्बन से, दोनों कार्बन के पास 2 बॉन्ड जो हैं ऑलरेडी आ गए हैं, इट मींस दैट 2 मोर bonds you want. So over here what you do, H2 H2। ओके, अब अगर आपको इसे ओपन फॉर्म में लिखना है, this, now when you are going to count the number of the bonds, 1 2 3 4, similarly for this carbon, 1 2 3 4। now what happens in this case beta, because in the 10th class we have the single double and single triple bond only। सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है कि जब आपके पास हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या हो गया, लेट्स सपोज कि मेरे पास ऐसा मेरे पास हेप्टीन है। ओके, अब हेप्टीन का मतलब क्या हो गया कि आई एम हैविंग द 7 कार्बन एटम्स, और इन का मतलब क्या हो गया, दैट आई एम हैविंग द डबल बॉन्ड। So therefore what happens that in the case sometimes when we have the higher carbon atoms, so there is the possibility that in a single chain only, आपकी एक ही चेन में you can have the more double bond, या फिर आपके पास एक ही चेन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों प्रेजेंट हो सकते हैं। ये एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड या डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होना, दिस यू आर गोइंग टू स्टडी इन द क्लास 11th। बट आई जस्ट इंट्रोड्यूस यू वन कॉन्सेप्ट, लाइक आपके पास से सपोज क्या आ गया, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया दैट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द हेप्टीन। ओके, अब हेप्टीन का मतलब आपको ये समझ में आ गया कि हेप्ट मतलब क्या हो गया, 7 कार्बन एटम्स, और इन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अगर आपको कंडेंस्ड फॉर्म में कंफ्यूजन है, शुरू शुरू में सबको होता है, तो आप क्या करो, रफ के अंदर ओपन स्ट्रक्चर बना लो। ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर, वैसे जब यहाँ पे in class 10th you are going to have the in only, मतलब आपके पास यहाँ पे कोई भी न्यूमरल नहीं आएगा। ओके, इन दोनों के बीच में ओवर हेयर देयर विल बी नो न्यूमरल। अब जब आपके यहाँ पे कोई भी न्यूमरल नहीं आएगा, तो आपका ये वाला जो कार्बन एटम है, आप इसको फर्स्ट कार्बन एटम ले सकते हो, और यू कैन टेक दिस एज अ फर्स्ट कार्बन एटम, ईदर ऑफ द टू, दोनों में से किसी एक को आप वन कार्बन फर्स्ट कार्बन एटम लोगे। नाउ से सपोज आई हैव टेकन this carbon atom as the first carbon atom। okay,
सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डबल बॉन्ड शो कर दूंगी। अब डबल बॉन्ड शो करने के बाद मुझे सबकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई करनी है। वैलेंसी सेटिस्फाई का मतलब क्या हो गया, सबके पास 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। अब इस वाले कार्बन C1 के पास, फर्स्ट कार्बन एटम के पास 2 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी हो गए। अब इसके पास 3 हो गए। नाउ दिस and putting the hydrogen. Okay? अब आपको एग्जाम में कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन इजीली राइट डाउन। आप यहां से स्टार्ट कर दो, CH3 CH2 CH2 CH2। अब इसके पास कितने हैं, CH डबल बॉन्ड एंड CH2। मीन्स अगर आपको याद हो, when I was making the alkane, तो यहाँ पे हमें बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं थी। Isn't it? I told you that not necessary. But in this case, in the case of the double or triple bond, in the case of the double or the triple bond, you require, it is mandatory that you require to show this bond. You require to show the double or the triple bond. Is that clear to everyone? डबल बॉन्ड लास्ट में लगाना है। Yes. हाँ बेटा, लास्ट में ही लगाना है। ओके? मेरे पास नहीं है। Is that clear? Yes, ma'am. नाउ देखो, अब जैसे आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि मैम ये लास्ट में ही लगाना है। आप ये लोग क्लास 11th में करोगे और नॉमेनक्लेचर हमारा कट भी गया है। मान लो अगर मेरे पास ऐसा होता हेप्ट 3 इन, तो जब बेटा यहाँ पे न्यूमरल आ जाता है ना कोई, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा, अब 3 की बजाय 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था। तो जब ये न्यूमरल आ जाता है ना, इसका मतलब होता है कि जो आपकी हेप्टेन वाली चेन है, जिसमें थर्ड कार्बन एटम जो है, थर्ड कार्बन एटम के पास ये डबल बॉन्ड है। गॉट इट? थर्ड कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड है। लाइक हमने यहाँ पे क्या बोला, इट इज द फर्स्ट कार्बन एटम, इट इज द सेकेंड कार्बन एटम, इट इज द थर्ड कार्बन एटम। तो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आता। गॉट इट? फिर यहाँ पे नहीं आता, और फिर जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आता, फिर आपका हाइड्रोजन भी जो है, नंबर ऑफ द हाइड्रोजन भी चेंज हो जाता है। 1 2 4 1 2 और यहाँ पे कितने आ जाते? Ma'am, your voice is very low. Now it is clear कि अगर न्यूमरल होता है फर्स्ट में क्यों लगाना है और बीच में क्यों नहीं लगाना? मैम एक बार प्रोपीन का बना दो। Okay, fine. Now see, now I am discussing about the first only because हमारे सिलेबस में फर्स्ट ही है। ओके? प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब क्या हो गया, यू आर हैविंग द 3 कार्बन एटम्स। ओके? अब आप इसको भी फर्स्ट ले सकते हो, इसको भी फर्स्ट ले सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसको फर्स्ट लेना चाहते हो। क्लियर? नाउ I have taken this as the first, so I have made a double bond over here. Okay?
अब मुझे सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। इस वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड आ गए, 2 और बचे। इस वाले कार्बन के पास 3 बॉन्ड आ गए तो 1 बचा। इसके पास 1 आ गया तो 3 लेफ्ट। अब इसको आप कंडेंस्ड फॉर्म में इजीली लिख सकते हो, CH3 CH2 double bond CH2. Got it? Got it? Yes, Can you ma'am. re-explain this? Explain. Okay, fine. I give you अपना कैमरा ऑन करके you just show me. आप लोग मुझे हेक्सीन बना के दिखाओ. Everyone make the hexene and show me. Whoever make it on your camera and show me over here. Anyone who has made it? हम बोल के बता दें। बोल के नहीं, कैमरा you cannot on the camera बेटा. मैम आपको मैम पूरा उल्टा दिखेगा मैम। Doesn't matter, I will look. No issues. Okay बेटा. Is it right? Who is this? Your camera? I am not able to look beta. Tell your name so I will click on your icon. Ishant Jain. Beta, I am not able to look. Okay, well, doesn't matter. I make and just match that what you have drawn is correct or not. Hexene, like I told you. अब hexene का मतलब what is hexene? 6 carbon atoms. Okay, अब आप अगर किसी ने यहाँ पे first लिया है तो your bond is going to come over here. If you have taken this side, left hand side first. If anyone has taken the right hand side the first, then bond will come over here. Okay? And like I have taken the right hand side only. And now 3, 4, so 1, 2, 3, 4, 3, 4. This. CH3, CH2, CH2, CH2. Now over here, CH, double bond, CH2. How many of you have got the correct? I have gotten correct answer. Correct answer? So this much is clear to everyone? मैम हाँ जी बेटा. मैम अपने प्रोटीन में शायद गलत लिखा है कंटेंट Oh, स्ट्रक्चर sorry. में। So no, sorry, I for propene में क्या मैम गलत? आपने
H3C, फिर CH आएगा ना? 1 2 3 4 यस CH ओके ओके बेटा now Yes, ma'am. how to make the alkenes, is it clear to everyone? Yes, Sub- ma'am. sure. Now your today's homework is what you all require to practice from ethene, that is your carbon atom C2, up to carbon atom 10, that is your decene. And similarly, in the case of the alkynes, C2 से लेके C10 तक, same rule you are going to follow in the case of the triple bond. अब ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या हो जाएगा, योर हाइड्रोजन एटम्स यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंग टू दैट. अगर कंडेंस्ड आप डायरेक्टली नहीं बना पा रहे हो, सो फॉर द बिगनर्स यू कैन मेक द रफ डायग्राम ऑफ दिस, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपको कितने हाइड्रोजन्स लगाने हैं. से सपोज अगर मेरे पास होता प्रोपाइन, प्रोपाइन मीन्स 3 कार्बन सॉरी 3 बॉन्ड्स, ये 3 बॉन्ड्स आ गए. ओके नाउ सैटिस्फाइंग द वैलेंसी, ऑलरेडी 3 है तो एक ही आएगा. 3 4 ऑलरेडी सेटिस्फाइड. 1 2 3 4, तो कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या हो गया, CH3 C and then CH, and over here triple bond. Got it? Yes, ma'am. Is that clear? अब इतना you can practice. Just आपको ये what बेटा, what बेटा, ये रहा ना बेटा प्रोपाइन. अच्छा एक्सप्लेन इट अगेन. ओके बेटा, मैं दूसरा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करती हूँ. से सपोज यू आर हैविंग द ब्यूटाइन. ओके अब ब्यूटाइन आपको अगर बनाना है तो यू आर हैविंग 1 2 3 4, ब्यूट का मतलब 4. अब आइन है तो आपके पास कितने आ गए, ट्रिपल बॉन्ड्स आ गए. अब देखो ये वाले कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी हो गए ना, तो एक बॉन्ड और आएगा. इस वाले कार्बन के पास 3 बॉन्ड हो गए यहाँ पे और एक बॉन्ड हो गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा. इसके पास 1 2 1 2 4 हो गए. इसके पास एक ही है तो 1 2 3. अब अगर आप इसका कंडेंस्ड फॉर्म बनाते हो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इट इज योर ब्यूटाइन. जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, नहीं आएगा डजंट मैटर, आई विल डू इट अगेन फॉर यू पीपल. सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैम ऑक्टेन के बाद क्या आता है मैम? C9 और 9 मैं बता देती हूँ बेटा, आप देखो. मेथ, मेथ मतलब कार्बन एटम 1, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक. अब अगर एल्केन होगा तो इन सब के आगे एन लग जाएगा, सबके आगे. अगर एल्कीन होगा तो सबके आगे इन लग जाएगा. अगर एल्काइन होगा तो सबके आगे सॉरी आइन लग जाएगा. ओके आपको 10 तक ही याद करने हैं. 10 से आगे वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी. लाइक एल्केन्स हैं
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। ईन है मिथीन, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। सिमिलरली आइन। गॉट इट? सिर्फ ये आपको याद रखना है और आपको सफिक्स पता ही है। व्हाट आर द सफिक्स? जस्ट पुटिंग द नेम। गॉट दिस वन एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. श्योर ना? अब just you require to practice it to make your concepts more clear, and then we will have the class on Saturday. So we will continue with the further unit regarding your exams. Metals and non metals आ रहा है